नबिहा का इशू था, आई कुड नॉट ट्रैक. नबिहा. Yes, Nabia. I could not see the message. You are saying something earlier. Okay. If some concern is there, please raise the hand. We'll take. So, if 0.03 ग्राम कार्बन मान लें तो टोटल वेट कितना आ रहा है? 100 ग्राम टोटल वेट है. इज दैट ओके? कम से कम एक कार्बन होगा, तो एक कार्बन के रेस्पेक्ट में if 12 gram carbon, then the total weight will be 100 upon 0.03 into 12. So ये 100 और हो जाएगा. 3 4 12, 40000 ग्राम. Is that okay? ये पॉइंट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट इसमें? यस सर. मुझे कुछ बच्चों की आवाज आ रही है, कुछ की नहीं भी आ रही है. और बीच में किसी ने जो भी टाइप किया है which I could not notice that time. नबीहा. Sir, actually I was my meeting was disconnected. अब ट्राई करिए एक बार बोलने का. Sir, actually Still my I could not hear you. You can type. You can type. I'll check everything after, but not in between the class connectivity part. You can type. और किसी और को सुनाई दे रहा हो तो वो मुझे बता दे. ओके, नो डाउट एनीमोर. चलिए प्रोसीड. चलो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. कुछ क्वेश्चन हमने पहले लिए थे, उसको हम छोड़ देते हैं. यस. Now try to go with this point. Which of the following sample contain 0.25 moles of H2SO4? बताइए. Anyone can answer? Either speak or type. किसके अंदर 0.25 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल होगा? हाइड्रोजन और H2SO4 का जीएमएम हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं. ओके, वेपर डेंसिटी इंट्रो स्लाइड आपको चाहिए. दिस इज डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी. नबीहा, डेंसिटी वाला पार्ट मास अपॉन मोल होता है, कॉमन टर्म. वेपर डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन. दोनों ही डेंसिटी टू डेंसिटी का रेशियो हो गया तो कोई यूनिट इसका नहीं रहेगा. गॉट इट? So density of any gas with respect to density of hydrogen at similar temperature and pressure के ऊपर. फिर हमने इसको कंडीशनल बना लिया है कि एक एचटीपी की कंडीशन ले ली जाए. 1 मोल आपका मोलर मास होगा और 1 मोल हमेशा 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है विथ रेस्पेक्ट टू गैस, नॉट फॉर सॉलिड, नॉट फॉर लिक्विड. तो जब वॉल्यूम दोनों का एक एक मोल ही ले रहे हैं तो वॉल्यूम पार्ट कैंसिल हो जाएगा. मास की जगह जीएम हम लिख देंगे. जीएम ऑफ द गैस वर्सेस जीएम ऑफ द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का जीएम 2 होता है. तो हमारा ये फॉर्मूला डेवलप हो गया. Am I clear? And then we are taken some of the question. कोई भी आपको गैस गिवन हो सकता है, and then you have to find out vapor density और vice versa, molar mass to vapor density और vapor density to molar mass. Is that okay, Naviha and others also? Can I proceed? Quickly. Is that clear? Yes, sir. Can I proceed now, Nabiha? This part you are asking. Am I able to explain you? Quickly.
Yes, sir. Are you present? Can I proceed? Okay, okay. What she's saying that I'm not getting, that's the issue coming. Anyway, please all of you answer this one. Which of the following sample contains 0.25 mole of sulfuric acid? What about the first one? 49 upon 98. Mass upon mole, it is what? Weight upon Option GM. two. Direct formula it is there. 24.5 upon 98. So you will get the option. Am I clear? Here the molecules are given. So you can convert molecule also into the mole. So 3 into 10 to the power 23 divided by Avogadro number. 6 into 10 to the power 23. Okay. And here again molecules are given. So accordingly you have to check it. And this we already taken earlier. Something, yes. What would be the ratio of the total number of atoms present in 10 liter of oxygen and 5 liter of methane at the same temperature and pressure? Yes, please. A, B, C, D. If I am not able to hear you, please type your answer so that I can check, because few student I am getting connectivity, from few I am not getting connectivity. So please respond by typing. Or somewhere doubt come, also type. Option A. A option 2:1. Okay, प्रवीण. और कोई उम्मीदवार? सर ऑप्शन सी. ऐसे जल्दी नहीं करें. ऑप्शन इज सी. Option C. ऑप्शन इज सी. रीजन, ये क्या पूछ रहा है आपसे? एटम पूछ रहा है. O2, ठीक है. इसके 1 मोल के अंदर कितने एटम आएंगे या कितने मोल बनेंगे? 2 मोल बनेंगे ना, बताया था. और कल एक फॉर्मूला भी लिखाया था आपको. नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू व्हाट? एटॉमिसिटी. नो, पहले एटॉमिसिटी, atomicity, then mole into Na. Are you getting my point? Atomicity clear? तो O2 की एटोमिसिटी कितनी हो गई? 2. ये 1 मोल के अंदर 2 है. अगर मैं इसके 10 लीटर या 10 मोल ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा? O2 के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20. Am I clear? CH4, एक कार्बन का 4 हाइड्रोजन के, तो इसकी एक मोल में कितने हैं? टोटल एलिमेंट की एटोमिसिटी कितनी आएगी इसकी? 1 कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन है तो 5 है. और इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको? 5 लीटर दिया हुआ है. ठीक, तो 5 मोल या 5 लीटर ले लें तो एटोमिसिटी कितनी आ जाएगी? 25. अब आपको किसका रेशियो पूछा? मैथेन वर्सेस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन वर्सेस मैथेन. ऑक्सीजन वर्सेस मैथेन. इसको भी ध्यान में रखना है आपको. O2 वर्सेस मैथेन का केस पूछ रहा है तो 20 वर्सेस 25. यस, 20 वर्सेस 25. 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. सी ऑप्शन. एम आई क्लियर? क्वेश्चन में आपको एटम के लिए पूछा है, कंपाउंड दिया हुआ है, कंपाउंड से आपको एटम पे जाना है. तो जब ये वॉल्यूम आ जाता है तो उसको आप गैसेस, दोनों गैसेस सब्सटेंस है तो उसको डायरेक्टली मोल के टर्म में भी रीड कर सकते हैं. एवरेज एटॉमिक मास की बात हुई थी पहले. एवरेज एटॉमिक मास, एक एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी आने वाला है, अभी हम लेंगे उसको भी. हाँ जी,
An element access the following isotopic composition, the weighted average atomic mass of the naturally occurring element should be close to. अब देखो तीन आइसोटोप दिए हुए, एक 90% है, एक 8% है और एक 2% है, तो वैल्यू किसके क्लोजर जाना चाहिए, 200 के कि 202 के? सोचो. Yes, please. What can be the choice? Obviously जो ज़्यादा से ज़्यादा है तो वैल्यू भी उसी के नियर बाई होगा. 200 है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है. और अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछा जाए तो फिर आपको आपका तरीका अप्लाई करना पड़ेगा. कौन सा? 200 इंटू 90. अगर एक्चुअल वैल्यू पूछा जा रहा है 199 इंटू 8 प्लस 202 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100. हमने एक फॉर्मूला भी लिखा था उसी के रेस्पेक्ट. 28 gram of nitrogen, 6 gram of hydrogen react to give the 34 gram of ammonia. This statement is going to represent which law? Quickly. Option A. Yes, you can type. 28 plus 6, 34 reactant है. At the end we are getting 34 gram of ammonia. तो law of conservation of mass. How much oxygen should react with the 36 gram carbon to give the 132 gram of carbon dioxide, assuming complete combustion of carbon? कितना ऑक्सीजन लेंगे 36 ग्राम कार्बन के रेस्पेक्ट में ताकि आपको 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए? कौन सा लो लगाएंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कि कार्बन इतना है और ऑक्सीजन इतना है, सबका मिला के आपको 132 ग्राम प्रोड्यूस किया है, उसमें से एक वैल्यू मुझे नोन है, तो डिफरेंस अमाउंट मेरा ऑक्सीजन का ही होगा. यस, एम आई क्लियर? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन द 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ V2O5? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन? क्या आंसर आएगा? आइदर स्पीक और टाइप. ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब ही मोल ही होता है. तो V2O5 है तो वैनेडियम ऑक्सीजन, तो इसका 1 मोल लेते हैं तो उसमें के होते हैं 5 मोल ऑक्सीजन के होते हैं. दैट्स ऑल.